السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز صاحب مکر ٹی وی USA اسلام آباد سے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے صوبے جس کا سب سے بڑا رقبہ بھی ہے، ہر حوالے سے منرلز، ہر حوالے سے وہ بہت آگے ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایجوکیشن کا جب نام آتا ہے تو اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ امن و امان کے حوالے سے نام آتا ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کہ ہماری فورسز کوشش کر رہی ہیں کسی طریقے سے وہاں پہ امن و امان قائم ہو جائے، وہاں پہ بہت سارے محب وطن پاکستانی کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن عام ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے بہت ہی قابل احترام جو ایجوکیشن سے وابستہ شخصیت ہیں، نام ہے ان کا ملک رشید کاکڑ، جو کافی ادارے ایجوکیشن کے نام سے چلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن آگے ہو۔ خواتین کے حوالے سے بھی وہاں پہ وہ بتائیں گے کہ ان کی ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے، کیوں نہیں ایجوکیشن خواتین کو دی جا رہی۔ تو کاکڑ صاحب آپ کو آج اس سلسلے میں ایک مفصل اور جامع بات چیت کر کے سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کیوں نہیں ہو رہی اور کون لوگ ہیں، کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایجوکیشن آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کاکڑ صاحب سے۔ جی السلام علیکم کاکڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کے چینل کا بہت مہربانی۔ میرا نام ملک رشید کاکڑ ہے، بلوچستان پرائیویٹ اسکول الائنس کے میں صدر ہوں۔ آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کا کہ انہوں نے بلوچستان کے مسئلے پہ، خاص کر کے بلوچستان کے ایجوکیشن پہ مسئلے پہ مجھے بلایا۔ بلوچستان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی 44% رقبہ جو ہے صوبہ بلوچستان کے ساتھ ہے۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لیکن ہم ایجوکیشن میں آج کل جدید دور میں بھی ہم تقریباً پیچھے ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایجوکیشن کے ریشو جو 31, 32, 35% ہے، لیکن میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ لیکن ایجوکیشن کے ریشو جو 21ویں صدی میں میرے یہ خیال ہے کہ 18 سے 20% ہے، اور خواتین کو تو اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اس کی مین ریزن 2-3 ہے۔ ایک تو بلوچستان میں ایجوکیشن نہ ہونا اس وجہ سے کہ وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے، سرداری نوابی نظام ہے۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ بلوچستان ایجوکیشن کے حوالے سے ترقی کرے، کیونکہ بلوچستان کے ان علاقوں میں اگر ایجوکیشن آ جائے تو ہمارے بلوچستان کی اسمبلی کی تقریباً 65 ٹوٹل سیٹیں، اس میں اگر بتا دوں کہ 50 سے اوپر سیٹیں جو ہے یہ وہی لوگ آ رہے جا رہے، جب سے پاکستان یا صوبہ بلوچستان 70 سے بنا ہے وہی لوگ آ رہے ہیں۔ اکثر 10-5 سیٹوں پہ سیاسی الیکشن ہوتے ہیں، باقی پہ وہی نواب وڈیرے آتے ہیں۔ اس کی وجہ مین یہی ہے کہ وہ اپنے قوم کے لیے تعلیم وہاں پر نہیں ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے جو بھی حکومت آتا ہے، چاہے موجودہ حکومت ہو چاہے پچھلا حکومت ہو، ایجوکیشن پہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 25% ایجوکیشن جو ہے اس کا جو بجٹ ہے ہم ایجوکیشن کو دیا، لیکن یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی بھی آپ 21ویں صدی میں جائے، بلوچستان جو ہے، کوئٹہ جو ہے بلوچستان کا کیپٹل ہے۔ کوئٹہ کے علاوہ یعنی آپ سے لے کر کے جوب تک، گوادر سے لے کر کے لورائی کے اس پنجاب کی تک، وہاں پہ جو رورل ایریا ہے وہاں کے اسکول جو سرکاری اسکول ہے، آج 21ویں صدی میں بھی کسی اسکول کا چار دیواری نہیں ہے، کسی اسکول کی سٹاف کمپلیٹ نہیں ہے، اور 21ویں صدی میں اسکول میں سائنس ٹیچر نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے یہ چیزیں پورا نہیں کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو UN کے کچھ ادارے ہیں بلوچستان کو کافی فنڈ بھی دے رہے ہیں، یورپی یونین بھی دے رہا ہے اور یونیسیف بھی دے رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگوں نے ہزار دفعہ اس کے خلاف احتجاج کیا، پریس کانفرنس کیے کہ آپ جو مسئلے گورنمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں، پرائیویٹ اسکول ہے، اس وقت ہم لوگ سٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ ہمارے تقریباً 3-4 لاکھ بچے اسی بلوچستان میں پرائیویٹ اسکول کی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو فیصلے کرتے وہی ڈونر اور بلوچستان کے محکمہ تعلیم کے لوگ آ کر کے اس کے فیصلے کرتے، ہمیں آن بورڈ نہیں لیتے۔ پہلے تو ہمارا یہ شکوہ سمجھے، گلہ سمجھے ہمارا یہ کہ ہمارے پرائیویٹ لوگوں کو بھی وہاں کے بٹھا کر کے جو فیصلے کرتے تاکہ ہم لوگ مشترکہ طور پہ کریں۔ مثلاً انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ اب بلوچستان میں انہوں نے پرائمری تعلیم بھی اس کا جو بورڈ کا سسٹم بنایا، 8ویں بھی کیا
मैट्रिक तो पहले बोर्ड से थे। और ये लोग हुकूमत बलूचिस्तान की महकमा तालीम कहता है कि हमने नकल ख़त्म किया, तो नकल तो ख़त्म, बल्कि आपको पता है दुनिया को बोर्ड में जो है बच्चे नकल करते, स्कूल के अंदर तो बच्चे नकल नहीं करते, वहाँ पे करते। तो इसी तरह जो फैसले करते हम लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। तो हमारे आज इस टीवी चैनल के तमाम बलूचिस्तान के ख़ास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये तजवीज़ समझे, जो भी समझे, हम इसे अपील करते हैं खुदारा बलूचिस्तान को एजुकेशन के जो आजकल 21वीं सदी के बराबर लाओ। आजकल के कंप्यूटर का दौरा है, लोगों ने बड़ा तरक्की किया है, तो हमारे बलूचिस्तान अभी तक कोई पुराने उस पर जा रहा है। तो अगर एजुकेशन में हम आगे गए तो मेरे ख्याल से तो ये जो बलूचिस्तान में हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होती है, इसकी मेन वजह ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। जब एजुकेशन आ जाता है दुनिया तरक्की करता है। इस वक्त दुनिया जो है, आप अभी श्रीलंका की तो गरीब मुल्क है, अभी आप जा कर के उसकी रेशियो एजुकेशन का दे करके 98% जा रहा है। लेकिन हमारे इस बदबस पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और बलूचिस्तान जो है मिनरल से भरा हुआ सूबा है, हमारे पास हर चीज़ है, सिंगमरमर है, ग्वादर का कितना बड़ा पोर्ट है हमारे पास, और हमारे पास दुनिया में एशिया में बहुत कम कंट्री है जिसके पास रिकॉर्डेड, जिसको सोना बोलता है, हमारे पास वो भी मौजूद है। और हर चीज़ अल्लाह पाक ने हमें बलूचिस्तान को दिया है, लेकिन हमें एक कमी में महसूस करता हूँ कि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ज़रूरी है। अभी मेरे एज जो है इस वक्त 50 से ऊपर है, हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो हमारे बच्चे हैं। आज से भी अगर ये लोग बल्कि इमरजेंसी लगा दे खास करके एजुकेशन पे, तो मेरे ख्याल से हमारे सूबे का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अब गवर्नमेंट खुद कह रहे हैं कि इस वक्त 12 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। क्यों आउट ऑफ स्कूल? किसके लिए हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। एक तो मसला है कि लोग बड़े गरीब है, गुरबत की वजह से इसके बच्चे होटलों में मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं, स्कूल की तरफ आते नहीं। और दूसरा, हमारे बलूचिस्तान कबायली सूबा है, ट्राइबल सिस्टम है, ख़ास करके लड़कियां जो है उसके अलग स्कूल गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। प्राइमरी स्कूल में तो कोई एजुकेशन चलता है, हमारे जो वहाँ के मजहबी लोग हैं वो इसकी मुखालफत करें, तो हमारी ख़ास करके लड़कियाँ जो इस 21वीं सदी में बहुत पीछे। अच्छा, इसके लिए ये एग्ज़ाम चाहे फेडरल तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 18 तरमीम आया, 18वीं तरमीम, उसने सारे अख्तियारात वो कह रहे हैं कि हमने सूबों को दे दिए। अब सूबे के साथ इतना अहलियत नहीं है, हमारी बात तो वो समझते नहीं है। हमने हज़ार दफ़ा बोला कि एजुकेशन पे इमरजेंसी लगाओ, इस पे फाइन सिस्टम रखो, जुर्माने सिस्टम रखो, ताकि बच्चे ख़ास करके 25 ये कहता है कि बच्चा जो है 4 साल से लेकर के 16 साल तक ये स्टेट की जिम्मेवारी होता है कि बच्चे को एजुकेशन, अच्छी सी एजुकेशन दे दे, लेकिन गवर्नमेंट वो पूरा नहीं करे। इसकी मेन 2-3 रीज़न है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं या जो स्टेक होल्डर होते हैं उसके साथ मशवरा नहीं करते, खुद फैसले खुद करते हैं, इसीलिए उसका सिस्टम अभी भी जो पर्दा किया है प्राइवेट स्कूल लेके है। आपके अदब वो जो है प्राइवेट स्कूल, अब लोग जो है सरकारी स्कूल से मुतमईन नहीं है, प्राइवेट स्कूल से मुतमईन है। वो उसकी मिसाल ये है कि वहाँ के जो सेक्रेटरी लेवल के जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बच्चे अगर सरकारी स्कूल अच्छे हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ते, इसीलिए प्राइवेट स्कूल उसके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है प्राइवेट स्कूल जो है वो अच्छे पढ़ाते हैं। इस हवाले से ख़ास करके जो हमारे सेशन है बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस की, हमारे साथ इकरा स्कूल के जो लोग हैं वो शामिल हैं। वो लोग इतने मुखालफत नहीं करे, लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा के जो हमारे मदरसे के दीनी तालीम है वो पहले से राइज है। वो भी कहते हैं कि भाई हमारे साथ अगर हेल्प किया जाए वो 1-2 सब्जेक्ट जो है वो ला सकता है, यानी इस्लामी सब्जेक्ट के साथ ये जो आजकल पाकिस्तान में इंग्लिश है, उर्दू है, जो सिस्टम है उसकी भी वो मुखालफत नहीं की। लेकिन हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कोशिश, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस पर कोई कोशिश की कि बस हम लोग खाली ये मुखालफत करें मदरसे, भाई उन्होंने मुखालफत नहीं किए। वो भी ये कह रहे कि हमारे बच्चों को आजकल की जदीद तालीम हो, तो ये बहुत अच्छी बात। तो ये ख़ास करके मदरसों के हवाले से बलूचिस्तान में वाकई मदरसे, स्कूल, सरकारी स्कूल से और प्राइवेट स्कूल से मदरसों का रुझान ज़्यादा है, लेकिन उसकी 2-3 वजह है। एक तो मदरसे का तालीम जो है वो मुफ्त है, वहाँ पे जो है बच्चों की कच्चा कमरे में बैठ करके वहाँ पर राइश भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। एक तो बहुत से पेरेंट्स ये बात किया। फिर दूसरा बात है कि हमारे बलूचिस्तान के लोग कुछ मज़हब की ज़्यादा वो नज़दीक है, लेकिन हम मज़हब के तो कोई आदमी भी मुखालफत नहीं करता है, बिल्कुल उसमें जो है अरबी तालीम हो, जो भी हो उसको, लेकिन उसके साथ हेल्प भी क्या करे। अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या जो हमारे डोनर हजरात है अगर उस पर काम करे, बल्कि
बल्कि मैं एक श्योरिटी देता हूँ, मेरे ज़रिए से मैं इन लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। कोई इस चीज़ पे मुखालफत नहीं करेंगे कि आप, लेकिन उसकी कुछ मदद करना चाहिए। हम लोगों ने बेयार मददगार छोड़े हुए, यानी वो मदरसा जो चल रहे वो लोगों की वो या उसी कम्युनिटी के पैसों से चल रहा है, या उसके लिए न कोई ट्रेनिंग्स दे, न कोई वर्कशॉप है, न कोई उसको बुक्स दे रहे, न कोई आजकल की दौर में कंप्यूटर दे रहे, न किसी ने इसका ट्रेनिंग किया। मेरे ख्याल से मैंने अक्सर लोगों से मदरसे के वाले से बात की, उन्होंने कोई मदरसे के जो वहाँ पे मुंतज़मीन है उससे मुखालफत नहीं। वो कहता है कि हमें अगर जदीद तालीम हमारे 1-2-3 सब्जेक्ट हो तो ये बुरी बात नहीं है, बलूचिस्तान इससे और तरक्की करेगा ताकि दीनी तालीम भी हो और साथ दुनियाई भी हो। तो ये दोनों मिल करके मेरे ख्याल से बलूचिस्तान जो है बहुत जल्द तरक्की भी कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे बच्चों में टैलेंट भी है, वो बच्चे इतने काबिल होता है कि आप जिस सब्जेक्ट पर बात करें आजकल की, यानी इस पसमानदगी के दौर में भी मदरसों के बच्चे भी काबिल है, प्राइवेट स्कूल की भी, सरकारी की भी मैं मुखालफत नहीं करता हूँ, लेकिन अगर वो स्ट्रेंथन करे, मेरे कहने का मकसद है कि वो स्कूल की भी ख्याल करे, जिस तरह सरकारी स्कूल की ख्याल करते हैं उसको फंडिंग देते हैं, प्राइवेट स्कूल और मदरसों को भी दिया करे। अगर उसको ये तीनों मिल करके तो बलूचिस्तान मेरे ये ख्याल है कि बहुत जल्द तरक्की करेगा। वहाँ मदरसों में जो कोई और काम हो रहे हैं, मैं तो इसके मुखालिफ हूँ, क्योंकि ये हमारे गांव के रहने वाले, बलूचिस्तान में एक जगह मैंने विज़िट किया है, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ये भी एजुकेशन की पसमानदगी का सबसे बड़ा ये कि फेडरल भी मुखालफत करे, आम लोगों के जहनों में ये चीज़ डाला, हालांकि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चा जो भी बच्चा हो, चाहे प्राइवेट स्कूल का हो चाहे मदरसे का हो, बच्चा होता है। हम ये इल्ज़ाम, हम पाकिस्तान में मुसीबत है कि जो अच्छे काम लोग करते हैं उसको तो अवार्ड मिलता नहीं है, हम बस तनकीद बड़ा तनकीद करते हैं। जो कोई अच्छा काम करता है उसको अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मदरसे के जो है वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ये इसलिए प्रोपेगेंडा है ताकि बलूचिस्तान मदरसे के हवाले से भी तरक्की नहीं करे, और ये बिल्कुल झूठ है। वो लोग जितने मेहनत करें, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल भी इतना मेहनत नहीं करे जितने सरकारी स्कूल है। वो बच्चे जो है महीनों के, मेरे ख्याल से हॉस्टल भी उसका वही होता है, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे बच्चों की निस्बत।